أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ایک سوال ہے، شادی کے بعد بیوی شوہر کی بات ماننا افضل ہے یا والدین کی؟ دیکھیے، شادی کے بعد ایک بیوی کے لیے شوہر کا مقام و مرتبہ والدین سے بہت بڑھ کے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی جائز اور مباح کام کے لیے شوہر کوئی حکم دے یا کسی چیز سے منع کرے تو ایسی صورت میں بیوی پر واجب ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور باقاعدہ اس کی ایک مثال بھی دی ہے کہ اگر والدین کبھی اپنے گھر پہ بلائیں اور شوہر منع کر دے تو ایسی صورت میں بیوی پر واجب ہے کہ وہ نہ جائے، واجب ہے کہ وہ نہ جائے، کیونکہ شوہر منع کر رہا اس کا، اور شوہر کی اطاعت والدین کی اطاعت بالمقابل زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا اس کے بعد کہ شوہر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو والدین کے گھر جانے سے روکے۔ کوئی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، جانا چاہتی ہے، جانے دینا چاہیے، لیکن ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے جب دل میں آیا چلے گئے۔ شوہر کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا، اصل خیال کس کا رکھنا ہے؟ آپ کو شوہر کا خیال رکھنا، آپ کی زندگی وہ اب ہے، آپ اس کے بھی جذبات کا خیال رکھیں، اس کے بھی احساسات کا خیال رکھیں۔ آپ اپنے گھر کیا ہے والدین سے ملنے جائیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شادی کے بعد بیوی کا مقام، بیوی کے لیے شوہر کا مقام اس کے والدین سے بڑھ کر ہے، لہذا اس کی اطاعت جائز کاموں میں، مباح کاموں میں والدین کے بالمقابل اس کی اطاعت کرنا واجب اور فرض ہے۔ ایک سوال یہ ہے، نمازیوں کی صف کے درمیان کرسیاں رکھنا کیسا ہے جبکہ صف کے درمیان جگہ خالی رہنے پر نماز نہیں ہوتی؟ دیکھیے، پہلا جو سب سے اہم مسئلہ ہے، اس طرح کی کرسیاں پہلی بات مسجدوں میں ہونی ہی نہیں چاہیے نمازیوں کے لیے، یہ سیدھی بات ہے، مجھے معاف کریں ذرا کڑوی بات ہے۔ اس طرح کی کرسیاں مسجدوں میں نمازیوں کے لیے ہونی ہی نہیں چاہیے، جس سے ہماری صف خراب ہوتی۔ اور دوسری بات، اس پر ایک بات آ گئی ہے کرسی کی، تو ایک بات یہ بھی بتا دوں میں، دیکھیے کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے بلکہ اصلاح مقصود ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کرسی پہ جب نماز پڑھتے ہیں ان کو ادب کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، ان کو ایسے بیٹھ کے پڑھنی چاہیے، ایسے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، سو کے پورا پیر وہاں تک پھیلاتے ہیں، ایسا پورا سو کے اس طرح پڑھتے ہیں، ایسی نماز نہیں ہوتی۔ بھائی آپ کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، یہ کون سا بیٹھنا ہے؟ یہ بیٹھنا ہے؟ ایسا بیٹھتے ہیں پورا پیر وہاں تک رہتا، پورا ایسا ایک دم لیٹے رہتے ہیں پورا، سمجھو، تو یہ نماز نہیں ہوتی میرے بھائی، یہ بیٹھنا ہے ہی نہیں، یہ لیٹنا ہے، یہ لیٹنا ہے، بیٹھنا نہیں، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ خضوع کے ساتھ آرام سے ایسا سیدھا بیٹھیں، سیدھا بیٹھنا چاہیے، آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں، ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، آپ کو صرف سہارا چاہیے نا بیٹھنے کا، تو کرسی ہے تو آپ سیدھا اس طرح بیٹھیں، ایسا سیدھا بیٹھنا ہے ایک دم، اس طرح نہیں ٹیک لگا کے، ایسے لوگوں کی نماز درست نہیں ہوتی۔
तो बात ये चल रही थी कि नमाजियों के सफ के दरमियान कुर्सियां रखना कैसा रख सकते हैं। बेहतर यह है कि एक छोटी कुर्सी होती है, वो सिर्फ बैठने के लिए बनती है, और उससे बेहतर स्टूल होता है। स्टूल होते हैं ना, होटलों पे देखते हैं ना, छोटे छोटे स्टूल रहते हैं। आप उस पे बैठेंगे तो आपकी सब भी नहीं कटेगी। आप दोनों पैर इस तरह निकाल के बैठे, आप बगल वाला मुसल्ली आपके पैर से पैर भी मिला लेगा, कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छे अच्छे आजकल स्कूल आ रहे हैं, आप उस पर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको सहारा चाहिए, आप खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह आपको शिफा दे, जो भी है इस तरह के, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। लेकिन नमाज ये अल्लाह की इबादत है मेरे भाइयों, इसमें किसी तरह की कोताही ना करें। आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज हो ही ना हो, नमाज सही ही ना हो, तो फायदा क्या पढ़ने का। तो उज्र आपके पास है, खड़े नहीं हो सकते, बैठ के पढ़ें, आप शरीयत रुखसत दे रही है, लेकिन उसमें फिर इफरात और तफरीत और ज्यादती से काम नहीं लेना चाहिए। अब बैठकर पढ़ें, सुकून से पढ़ें। और दूसरी बात यह है कि कुर्सी इस तरह रखें, ना तो आगे हो ना पीछे हो, सबके बराबर। हमने कहा कि कंधे से कंधा बराबर होना चाहिए। जो कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं नमाज, और जो उनके बगल में खड़ा आदमी नमाज है, उनका कंधा इनका कंधा बराबर होना चाहिए। कुछ लोग पीछे रख लेते हैं, कुछ लोग आगे रख लेते हैं, बारहा इस पर तंबीह की गई है। कुछ लोग इतना पीछे रखते हैं कि पीछे सजदा रुकू करने वालों को परेशानी होती, वो भी गलत है। तो आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरे नमाजियों को, अपने पीछे वालों को, अपने अगल बगल वालों को तकलीफ ना दें। और दूसरी बात, कुर्सी अब जाहिर सी बात है, और अगर सब में जगह खाली है तो उनके लिए जरूरी है कि सबसे मिलकर ही वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ें। ये नहीं कि सब यहाँ लगी है और वहां एक दो आदमी बैठे हुए हैं, सब पुर नहीं हुई है, ये गलत तरीका। अगर वहां आपकी नमाज सही हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है। अगर किनारे आपकी कुर्सी पे बैठ के नमाज सही हो सकती है तो यहाँ सबके बीच में भी सही हो सकती है। तो ये नहीं कि सब खाली है, आप किनारे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं कुर्सी पे, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सव्वू सुफूफकुम, अपनी सफों को दुरुस्त करो। बाद रिवायतों में अपनी सफों को मिला के रखो। तो ये मिलाना कहां हुआ, सफ यहां तक है, आप वहां किनारे बैठे हैं, ये गलत तरीका है। आप सबसे मुत्तसिल होकर बैठें और बीच में जगह खाली ना रखें, जितना मुमकिन हो सके जगह को पुर करें। तो सफों के दरमियान में कुर्सी रखी जा सकती है, अलबत्ता बेहतर यह है कि ऐसी कुर्सी रखी जाए जिससे अगल बगल वालों को तकलीफ ना हो और सफ हमारी ना कटे। तो दरमियान में खाली जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां से एक बात और याद आ गई, खवातीन के मुतालिक बार बार ये शिकायत आ रही है कि वो सफ लगाकर, सफ मुत्तसिल करके नमाज नहीं पढ़ रही हैं। कुछ लोग उस किनारे खड़े हैं, कुछ लोग इस किनारे खड़े हैं, पहली सफ के बाद कोई तीसरी सफ में खड़ा है, कोई चौथी सफ में खड़े हैं। ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद बयान की है, मन क़तअ सफ़्फ़न क़तअहुल्लाह, जो सफ को काटता है अल्लाह उसको काट देता है। किससे काट देता है? इमाम नववी कहते हैं, क़तअहुल्लाहु अन रहमतिही व अनिल जन्नह, अल्लाह उसको अपनी रहमत से काट देता है, अपनी जन्नत से काट देता है। तो सफ मुत्तसिल रखें। एक सफ जो आपकी लगाई जा रही है, पहली सफ जब तक मुकम्मल ना हो, जायज नहीं है कि दूसरी सफ में कोई खड़ा हो। पहली सफ जो आपकी बनी हुई है, पहले वो सफ मुकम्मल करें, फिर दूसरी सफ मुकम्मल करें। और दूसरी सफ का मतलब यह है कि इतनी दूर नहीं होना चाहिए। सुनने में आया जहां फैन है वहीं सिर्फ औरतें खड़ी होती हैं, जहां फैन नहीं है वो जगह छोड़ के पीछे खड़ी होती हैं। तो यह तरीका गलत है। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। जाहिर सी बात है वहां गर्मी तो शायद ज्यादा ही होगी, लेकिन यह तरीका गलत है। आपकी पहली सफ मुकम्मल हो गई, अब दूसरी सफ मुकम्मल करें, फिर तीसरी सफ, इस तरह मुकम्मल करें। और एक सफ और दूसरी सफ के दरमियान सिर्फ 3 हाथ का फासला होना चाहिए, 6 हाथ 10 हाथ का नहीं कि आप पहली सफ छोड़ करके तीसरी सफ लगा रहे हैं। पहली और दूसरी सफ के दरमियान में कितना फासला होना चाहिए? 3 हाथ 3.5 हाथ, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कि एक सफ यहाँ है, दूसरी सफ वहां है, तीसरी सफ वहां है। ये भी तरीका गलत है। ठीक है, तो आप लोग सफ मुकम्मल करें। जब तक पहली सफ ना मुकम्मल हो दूसरी सफ ना लगाएं, दूसरी सफ जब तक मुकम्मल ना हो तीसरी सफ ना लगाएं। और दरमियान में खाली रखना जगह ये जायज नहीं है, शैतान वहां आके घुस जाता है और आपकी नमाज को खराब करता है।
ज़कात गैर मुस्लिमीन को मुतलक क्या है, उमूमी तौर पर देना जायज नहीं, इल्ला ये कि वो इस्लाम की तरफ माइल हो, इस्लाम से उसका लगाव हो, उससे ताल्लुक पैदा हो रहा हो, इस्लाम सीख रहा हो, इस्लाम जानने की कोशिश कर रहा हो, तो इस्लाम की तरफ अगर वो माइल है तो उसकी तालीफ कल्ब के लिए, वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, जहां ज़कात के मसारिफ अल्लाह ने बयान किया ना, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकिन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, तालीफ कल्ब के लिए, इस नियत से अगर कोई इस तरह का है तो उसको ज़कात दी जा सकती, वरना मुतलक तौर पर या उमूमी तौर पर मुसलमानों को छोड़कर गैर मुस्लिमों को ज़कात नहीं दी जा सकती। उसके 8 मसारिफ हैं, इन्हीं 8 मसारिफ में ज़कात को खर्च करना है। एक सवाल यह, रोजे की हालत में मियाँ बीवी एक साथ आराम फरमा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल फरमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इल्ला ये कि शहवत पर कंट्रोल। आयशा खुद कहती हैं, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुनी व अना साइम, अल्लाह के नबी बोसा दिया करते थे रोजे की हालत में, रोजे की हालत में बोसा दिया करते थे, तो बोसा भी कर सकते हैं, एक साथ सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, मुदाअबत कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं, बस शर्त यह है कि उसको अपनी शहवत पर कंट्रोल हो। हदीस में आता है वकान अमलककुम लिइर्बी, अल्लाह के नबी अपनी शहवत पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखने वाले थे। तो अगर शहवत पर कंट्रोल हो, इसी वजह से ये 2 साइल आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के नबी क्या अपनी बीवी को बोसा दे सकता हूँ? जवान था वो, एकदम जवान था, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं। दूसरा आदमी आया, जरा कमजोर आदमी था, ज़ईफ, बूढ़ा आदमी थोड़ा, अल्लाह के नबी बीवी को बोसा दे सकते हैं। ये फर्क क्यों समझाया अल्लाह के नबी? तो अगर शहवत पर कंट्रोल है, हराम काम में पड़ने का अंदेशा अगर नहीं है आपको, तो बोसा दे सकते हैं, एक साथ लेट सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हराम में पड़ने का अंदेशा नहीं, आपको अपनी शहवत पर कंट्रोल है, और अगर नहीं है, आपको अंदेशा है कि नहीं गलत काम में पड़ जाएंगे, हराम काम में पड़ जाएंगे, तो नहीं दे सकते फिर बोसा, क्योंकि हराम काम पड़ने का जो सबब बन रहा है, जो अमल, वो भी हराम हो जाता है, हराम तक पहुंचाने वाली चीज भी हराम हो जाती है। तो अगर शहवत पर कंट्रोल नहीं है तो बोसा नहीं दे सकते हैं। और कोई सवाल है? नहीं नहीं, पाक से पता नहीं क्या मुराद लेते हैं वो लोग। अल्लाह पाक का तो मतलब समझ में आता है कि अल्लाह हर तरह के ऐब से, हर तरह की कमी से, नक्स से, हर तरह के शिर्क से और शराकत से, पार्टनरशिप से, हर ऐब से अल्लाह की जात पाक साफ है, ये समझ में आता है। नबी पाक, तो पाक से यहाँ क्या मुराद ले रहे हैं? वल्लाहु आलम। वो अगर अपना मफहूम बताएं कि इससे मुराद क्या है, ये गैरों की इस्तिलाह है, अहलुल हदीस से उलमा इस तरह की इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करते हैं, इससे बचना चाहिए। देखिए, वित्र में दुआए कनूत पढ़ना वाजिब और जरूरी नहीं है। कुनूत में जो दुआ पढ़ी जाती है, जिसको हम कुनूते वित्र या दुआए कुनूत कहते हैं, ये पढ़ना वाजिब और जरूरी नहीं है। अगर कोई पढ़ता है अच्छी बात, नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज हो जाती है, वाजिब और जरूरी चीज नहीं है। तीन दिन, हाँ हाँ, हमने बिगड़े हुए लोगों को भी देखा है जो उसमें गए हैं, वो मस्जिद में बैठ के सिगरेट नोशी करते हैं, मस्जिद में बैठ के तंबाकू खाते हैं, मस्जिद में बैठ के फिल्म बीनी करते हैं। हमने अपनी आंखों से अपने गांव की मस्जिद में देखा।
समझ रहे हैं? तो वहां जाके कोई जरूर नहीं कि वो सुधर जाए। और दूसरी बात ये है, ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है। वो जितने लोग जाते हैं वो आलिम नहीं होते, सब जाहिल होते हैं, और फिर वो नमाज के बाद वो दीन की बात करते हैं, सबको सिखाते हैं। वो लोग दीन की बात बैठ के मुसल्ले पे बैठते हैं या मिंबर पर बैठते हैं या कुर्सी लेके बैठते हैं, जरा सुन्नतों से फारिग होने के बाद तशरीफ रखें, दीन की बात होगी। तो दीन की बात कौन करता है मालूम है? वो जो गांव में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, वो बैठ के आपको दिन की बात सिखाता है। वो सिखाता है दिन की बात, हमको सिखाते थे लोग बैठ के। तो ऐसा मसला है हमारे गांव में। अभी हम जाते हैं तो आते हैं लोग, तो हमको सिखाते हैं दिन की बात। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, उर्दू पढ़ना नहीं आता, हदीस का कुरान का कुछ भी इल्म नहीं है, वो दीन सिखाते हैं। बिल्कुल ये जायज नहीं है, हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे उलमा को उठा लेगा, और जब कोई आलिम नहीं बचेगा तो लोग जाहिलों को अपना आलिम, अपना मुफ्ती और सरदार बनाएंगे। फसुइलू, उनसे सवाल किया जाएगा, फअफ्तौ बिगैर इल्मिन, बगैर इल्म के, बगैर दलील के फतवा देंगे, तकरीर करेंगे। फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी वो गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। यही हो रहा है भाई। वो जाहिल आदमी हमको क्या दीन सिखाएगा? वहां कौन सी बात सिखाई जा रही है कि वो सुधर जाएगा? सुधरना है, मस्जिद में जाओ, उलमा की सोबत में बैठो, सुबह शाम के जो दर्स होते हैं वो पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, हदीस पढ़ो, अच्छे नेक लोगों की सोबत में रहो। मदरसा है, मदरसे में जाके इल्म सीखो। ये इसकी ताइन कहाँ है कि 40 दिन में आदमी सुधर जाएगा? बताओ तो। उसकी उम्र 25 साल हो गई, सुधरा नहीं, 40 दिन वहां जाके सुधर जाएगा? तो ये सब जो तायीन की जाती है, 3 दिन, 40 दिन, 4 महीना, चिल्ला पिल्ला, इसके हदीस से कहीं भी कोई सबूत नहीं। भाई गांव मुआशरे की मस्जिदों में जो दुरूस होते हैं, जो हलकात होते हैं, उसमें बैठें, गौर से सुने, जाती तौर पर कुरान की तफसीर पढ़ें, तर्जुमा के साथ पढ़ें, अल्लाह से डरें, अल्लाह से तौबा करें। यही सब इस्लाह है। जरूर नहीं कि चिल्ला मही में जाके कोई दुरुस्त हो सकता। कितने ऐसे लोगों को देखा गया है कि चिल्ला करके भी आते हैं तो वही जो काम करते थे वही कर रहे हैं, क्योंकि उसी माहौल में हमें जी रहे हैं। हमारा जो गांव है सब वही लोग हैं, उसी माहौल में हम रहते हैं, उसी माहौल में लोगों को देखते हैं, उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं, सब मालूम है हमको। तो ये जरूरी नहीं है कि वहां जाके सुधर जाता बिगड़ा हुआ बच्चा, और भी बिगड़ के आते हैं। जी, अगर भाई मुस्तहिक है, हकीकत में वो गरीब है और उस ज़कात का मुस्तहिक बन रहा है, तो उसको दे सकते हैं, बल्कि उसमें आपको इंशाल्लाह डबल सवाब भी मिलेगा। एक तो उसकी मदद करने का, दूसरी रिश्तेदारी को मजबूत करने का, सिला रहमी करने का। खर्च करने का सवाब अलग और सिला रहमी का सवाब अलग से डबल सवाब मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि वो मुस्तहिक हो ज़कात का। अगर मुस्तहिक नहीं है तो नहीं दे सकते। कौन पूछा है जी? देखिए, ऐसा नहीं मसला है, बल्कि अपने जो महल्ले की मस्जिद होती है, समझ रहे हैं, अपने महल्ले की जो मस्जिद होती है, वहां के मुसलमानों के लिए जरूरी है कि उस मस्जिद का हक अदा करें। महल्ले की मस्जिद, इसी वजह से हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपने महल्लों में मस्जिद बनाएं, उसको पाक साफ रखें, उसको खुशबू लगाएं, यानी मुअत्तर रखें। ठीक है? तो महल्ले की जो मस्जिद है, वो मोहल्ले वालों के लिए जरूरी है कि पहले उस मस्जिद को भरें। उस मस्जिद में आपको जगह नहीं मिल रही है, दूसरी मस्जिद में चले जाएं। अलबत्ता अगर कोई अपने महल्ले की मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद में चला गया तो कोई गुनाह नहीं। शर्त यह है कि वो जमात के साथ नमाज पढ़े, बस शर्त यह है कि वो जमात के साथ नमाज पढ़े। अलबत्ता अफजल यही है कि अपने महल्ले की मस्जिद में पढ़े।
ये अव्वल। ये नहीं कि ये मस्जिद खाली है, 2-4 मुसल्ली हैं या 1-2 सफ हो रही है, आप जाके दूसरी मस्जिद भर रहे हैं, ठीक है। अव्वल ये है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद को तरजीह दें। अगर वो अपनी मस्जिद है, अपनी मस्जिद है जहां कुरान और हदीस के मुताबिक नमाज पढ़ाई जाती है, अगर वो मस्जिद है तो उसको तरजीह दें। सहरी का आखिरी वक्त वही तुलुए फज्र, सुबह सादिक जिसको हम कहते हैं, वही सुबह सादिक जहां पर रात खत्म हो जाती है। तो सुबह सादिक अभी मेरे ख्याल से 5:28 पर, 5:25 पर, 5:25 पर सहरी का आखिरी वक्त। अजान होने के बाद अगर कोई खाता है तो वो रोजा है ही नहीं उसका। जानबूझकर अगर उसको मालूम है कि वक्त हो गया है फिर भी कोई खा रहा है तो रोजा उसका बर्बाद। हाँ, अगर क्या है, भूल चूक से, गलती से खा लिया कि भाई वो सोचा कि अभी फजर तुलू नहीं हुई है, खा लिया, लेकिन देखा कि नहीं वक्त तो ज्यादा हो रहा है, तो फौरन वो पास आ जाए। तो अहले इल्म की एक बड़ी जमात, बल्कि अक्सर अहले इल्म कहना कि उसका रोजा सही है, क्योंकि असल रात का बाकी रहना, असल रात का बाकी रहना है। तो अगर गलती से इस तरह कभी वो खा लिया कि रात अभी बाकी है, सहरी का वक्त अभी है, बाद में उसको मालूम हुआ कि नहीं टाइम खत्म हो गया है, अगर वो फौरन रुक गया तो इंशाल्लाह उसका रोजा सही होगा। इसी तरह अगर दिन में कोई ये समझकर इफ्तार कर ले कि मगरिब का वक्त हो गया है तो उसका रोजा टूट जाएगा, क्योंकि असल क्या है, दिन का बाकी रहना। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ उसके बराबर। हर रोजे के लिए अलग नियत करने में एहतियात है, यही बेहतर है। यही भूलने का मतलब क्या होता है, नहीं, हमको यही नहीं मालूम होता है कि भूलने का मतलब क्या होता। आदमी उठ रहा है, हाथ मुंह धो रहा है, क्यों उठ रहा है? जाके क्रिकेट खेलेगा अभी? हैं? क्या करेगा? नहीं, किस नियत से वो उठा है? वो मुंह क्यों धुल रहा है, ब्रश क्यों कर रहा है, खाना क्यों खा रहा है बैठ के, किस नियत से खा रहा है? जाहिर सी बात है, सहरी, वो रोजा रखने की नियत से वो सहरी खा रहा है, रोजा रखने की नियत से उठा, यही नियत है, यही नियत है। ये नहीं कि बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, ये नियत करके कोई रोजा रखेगा जिंदगी भर में एक रोजा उसका नहीं होगा, क्योंकि वो रोजा सहरी आज की खा रहा है और रोजे की नियत कल की कर रहा है। आज की सहरी खा रहा है, कल की नियत कर रहा है, तो कभी भी रोजा उसका एक भी सही नहीं होगा। हम खाने काबा का तवाफ क्यों करते हैं और एहराम क्यों बांधते हैं? इस वजह से करते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म देने के साथ साथ इस पर अमल भी किया है, ठीक है। इस वजह से हम खाने काबा का तवाफ करते हैं, अल्लाह का हुक्म है। वत्ताइफीन, कुरान में है ना, तवाफ करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखो। तो अल्लाह ने भी तवाफ करने की बात कही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कही है, और आपने किया है कई बार तवाफ, सहाबा ने किया है, सलफ ने किया, इस वजह से हम भी तवाफ करते हैं। वो भी एक तरह की इबादत है, ये भी एक इबादत है। इहराम बांधते हैं, अल्लाह के नबी ने हमको हुक्म दिया, इस वजह से बांधते हैं। यही सबसे बड़ी हिकमत है कि नबी ने किया है, कहा है, बस उससे बड़ी कोई हिकमत हो ही नहीं सकती। हमारे लिए इतना ही काफी है कि नबी ने किया है और नबी ने ऐसा करने के लिए कहा है, खलास। बताएंगे इंशाअल्लाह, वो भी बताएंगे। उसकी बहुत सारी अलामात हदीस में बताई गई हैं, उन अलामतों के जरिया हो सकता है कभी कभार किसी आदमी को इल्म हो जाए कि यही रात लैलतुल क़द्र थी। उसकी चंद अलामतें, नहीं, अगर वो मुस्तहिक है सामने वाला तो बोलने की जरूरत क्या है? बोलना जरूरी नहीं कि ये ज़कात ही का पैसा। अगर वो मुस्तहिक है सामने वाला तो आप उसको दे सकते हैं।
जी जी, बताना जरूरी नहीं। बताना क्या है, जरूरी नहीं। अगर वो सामने वाला मुस्तहिक है जक़ात का तो उसको दे सकते हैं, लेकिन मुस्तहिक नहीं है ना तो उसको देना, पहली बात उसको देना भी जायज नहीं। उसको देना भी जायज नहीं। सोने का निसाब जो है 7.5 तोला। 7.5 तोला या उससे जायद अगर किसी के पास सोना है तो उसमें जक़ात वाजिब है। जक़ात कैसे निकालेंगे? जब आप जक़ात निकालने का इरादा कर रहे हैं उस वक्त सोने की सही कीमत मालूम करें। सोने की सही कीमत मालूम करें कि अब जब मैं निकाल रहा हूं इस वक्त कितनी कीमत है, उसके हिसाब से कीमत का अंदाजा लगाएं। और आप क्या है 40वां हिस्सा या 2.5% जिसको हम कहते हैं, उसके हिसाब से आप जक़ात निकाल दें। इसी तरह चांदी का जो निसाब है 52.5 तोला है। चांदी का निसाब कितना है? 52.5 तोला, 595 ग्राम। हाँ? पन, नहीं नहीं, 595 ग्राम, और बाज उलमा ने 585 ग्राम। तो अगर इसके बराबर 52.5 तोला, तो ये फिक्स है, हदीस में इसका जिक्र। ठीक है। तो अब ये ग्राम आप लोग समझें कि कितना होता है। हो सकता है जगह जगह पे मुख्तलिफ भी हो। तो 595 ग्राम, बाद लोगों ने 585 ग्राम। तो अगर इतना किसी के पास चांदी है तो वो भी निकालने के वक्त अपनी कीमत मालूम करे उसकी, उसके हिसाब से 2.5%। मसलन 1000 रुपया हो रही है तो 250 रुपया, लाख रुपया हो रही है तो 2500। तो इस हिसाब से वो क्या है 2.5% के हिसाब से अपनी जक़ात निकाल दे। अलबत्ता सोने और चांदी को जमा करके जक़ात नहीं निकाली जाएगी। मसलन किसी के पास 4 तोला सोना है और 10 तोला क्या है चांदी है, तो मिलाएगा नहीं वो। जो निसाब को पहुंच रहा है उसमें जक़ात निकालना वाजिब है, और जो निसाब को नहीं पहुंच रहा है नफली तौर पर आप जितना चाहें, जितना चाहें, आपकी मर्जी, जितना चाहें उतना निकाल लें। दोनों को मिलाना नहीं है। ठीक है, खलास। जी, अगरचे गिरवी रखे हैं लेकिन मिल्कियत किसकी है? हम्म, बिल्कुल उस पर जक़ात है, उस पर जक़ात। ठीक है, ऐसे माल पर भी या ऐसे सोने पर भी ज़कात है। खलास। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।